Everyone, special clap go. Ma'am, your presence added immense grace to our event. Okay, thank you. I would like to invite our principal ma'am to to respect our in honor of our chief guest Seema Khetwal ma'am to badge pinning as the token of appreciation. Let us all applaud for them. Everyone. मार्गदर्शन है अपेक्षा स्नेहवर्धन देता मार्गदर्शन है अपेक्षा धन्यतम दिन धन्यतम दिन धन्यतम धन्यतम दिन धन्यतम दिन धन्यतम स्वागतम शुभ स्वागतम नित स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम नित स्वागतम सुंदरम मनभावनम तव स्वागतम सुंदरम मनभावनम तव स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम नित स्वागतम स्वागतम शुभ स्वागतम नित स्वागतम Again, give a big round of applause for our talented student of class 7 for this beautiful welcome song. So, to invite our chairman sir on the stage to introduce our chief guest and to say a few words on this ceremony of Children's Day. Again, give a big round of applause for our talented student of class 7 for this beautiful welcome song. So, to invite our chairman sir on the stage to introduce our chief guest and to say a few words on this ceremony of Children's Day.
Good morning to everybody. So, Honorable Chief District Judge with us today on the occasions we are already having to be celebrating the Children's Day, but on these occasions too, you should know about your rights and how to be protect yourself by the law. Because student, nowadays a lot of incidents to be going to happen with the small kids who are the under 14s, under 18s, school going student, because they don't aware about the law and rule and regulations the courts has given to us. So in that occasion, today we are going to aware you something about your rights and your how to be protect yourself by this law. So on this occasion, ma'am with us today, and so already we have taken the test yesterday on this topic only, child rights and child protection, and so all you have done very well performed in that. Maybe you are something aware about yesterday's one program, and so today some more things ma'am will guide us, ma'am will aware us, and how to be this law to be proceeds, whichever is protect to our children. So I'm not taking so much more times. I'm just calling to ma'am. Thank you. Your words, your encouragement truly motivates all of us to dream big and shine brighter. And now, I would like to, it's our honor to invite our chief guest to share a few words of wisdom and encouragement with all today. So now I would like to invite our chief guest, ma'am, our civil judge, ma'am. Ma'am, please share some words of wisdom with us. Good morning, all of you. Morning, ma'am. How are you all? Fine. कुछ पंक्तियों से मैं शुरू करूंगी. आज बाल दिवस है. बाल दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं. इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक, चेयरमैन महोदय, शिक्षकगण, समस्त स्टाफ, डीएलएससी का स्टाफ, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ. रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था. रोने की वजह न थी, न हंसने का बहाना था. क्यों हो गए हम इतने बड़े? इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था. बचपन की वह अमीरी न जाने अब कहां खो गई. वो दिन कुछ और थे जनाब, जब बारिश के पानी में हमारे जहाज चला करते थे. जब बारिश के पानी में हमारे जहाज चला करते थे. इन पंक्तियों से मुझे बचपन की याद आई. कितना अच्छा बचपन हुआ करता था. जैसे आप लोगों को देख रही हूँ, हर चीज सेलिब्रेट होती है. ना कोई टेंशन है, ना घर की टेंशन, ना काम की टेंशन, ना बच्चों की टेंशन. फ्री में अभी आप सब लोग आजाद हैं. अपनी लाइफ को खूब एंजॉय करिए, अच्छी तरीके से एंजॉय करिए, गुड वे में एंजॉय करिए. आज का दिन हम सेलिब्रेट क्यों करते हैं? कोई बताएगा अपने से? 14 नवंबर को हम चिल्ड्रंस डे मनाते हैं. क्यों मनाते हैं? एनीबॉडी फ्रॉम यू? वेरी गुड. जवाहरलाल नेहरू जो कि हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार था. उनको लगता था कि बच्चों को अगर हम सुधारेंगे, हमारे भविष्य है, हमारे भारत का कल्याण होगा, हमारा भारत बहुत विकास करेगा, आगे बढ़ेगा. वो कहते थे बच्चों को मतलब पढ़ाइए लिखाइए, इतना आगे बढ़ाइए कि हाँ हमारा भविष्य खुद ही सुधरेगा. अगर बच्चे अपने पैरों पर खड़े होंगे, उनके अधिकार सुरक्षित होंगे, उनका विकास होगा, उनका हर प्रकार से विकास होगा, मानसिक विकास होगा, शारीरिक विकास होगा. इसीलिए हम गांधी जो आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं, जवाहरलाल नेहरू की जयंती के रूप में हम इसको मनाते हैं. उनका
उद्देश्य ये था कि अगर हमारी जो आज की जो नई पीढ़ी है अगर वो सुधरेगी तो हमारा विकास होगा, भविष्य में आने वाले दिन होंगे बहुत अच्छे होंगे, हमारे भारत का विकास होगा, कल्याण होगा। उन्होंने कहा बच्चों के जो अधिकार हैं उनको सुरक्षित किया जाए, संरक्षित किया जाए। बच्चों के अधिकार क्या क्या हो सकते हैं? बच्चों को जीवन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, उनको स्वास्थ्य का अधिकार कि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उनके प्रति किसी प्रकार का शोषण ना हो, किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो। आप आए दिन देखते होंगे, जैसे मैंने बचपन की बात की ना, हम बचपन से बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई अंकल आते हैं, आपके पड़ोस के कोई नेबर है, आपका छोटी कोई बहन है, 7-8 साल की बहन है, उसको घर में आएंगे, बातचीत करेंगे, सबसे बात करेंगे, उसके गाल पे ऐसे करके खींचने लगेंगे, आपको उनके आशय का पता चलेगा कि अंकल किस आशय से खींच रहे हैं। कुछ लोग होता है हाँ ठीक है, प्यार कर रहे हैं, बच्चा है छोटा, दुलार करते हैं, वो अलग चीज हो गई। लेकिन आजकल के जमाने में क्या हो रहा है, छोटी बच्ची हो गई, उसके साथ अगर इस तरीके से कोई भी व्यवहार करता है, उसके गाल खींचना, उसको अपनी गोद में बिठा लेना, गोद में बिठाते बिठाते बच्चे को किस कर लेना, छोटी बच्ची को किस कर लेना, ये सारे अपराध हैं। किस चीज में अपराध है? इसका एक अधिनियम है, पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट के बारे में किसी ने सुना है आज तक? सुना है? पोक्सो एक्ट, छोटे बच्चे के साथ अगर कोई अपराध होता है, छोटे बच्चे का मतलब क्या होगा? कोई छोटा बच्चा 1 साल का, 2 साल का नहीं, 18 साल तक की उम्र का अगर कोई बच्चा है, उसके साथ, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया कि अंकल आए, गोद में बिठा लिया, गले पे किस कर लिया, हाथ पे किस कर लिया, गलत इरादे से किस कर रहे हैं, गलत इरादे से अपनी गोद में बिठाया है, इस प्रकार से अगर कोई कृत्य करता है तो ये पोक्सो एक्ट के अंतर्गत एक अपराध है, एक बहुत बड़ा अपराध है, जिसके लिए उसके लिए जो सजा दी गई है उसमें सजा भी बहुत, इतनी ज्यादा सजा का प्रावधान किया गया है कि इसलिए उसमें जो सजा है वो बहुत बड़ी सजा दी जाती है, ताकि आने वाला कोई भी अगर व्यक्ति ऐसा करता है तो वो ना करे। पोक्सो अधिनियम में करने वाला भी अभी बच्चा है और जिसके साथ किया गया है बच्चा है, तो उसका लाभ, जिसके साथ घटना घटित हुई है, जो पीड़ित है, जो बच्चा है छोटा 18 साल से, वो पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम करवा सकते हैं, उसका घर का कोई भी व्यक्ति। ऐसे ही मान लीजिए आपके घर में आप लोग कहीं गए हैं, मम्मी पापा घर से बाहर कहीं गए हैं, काम से गए हैं, आप घर पे अकेले हो, आप छोटे हो, 18 साल से कम उम्र के हो, पड़ोस के एक भैया आते हैं, आपसे कहते हैं फोन देखोगे, कार्टून देखोगे या गेम खेलोगे? कौन सा गेम खेलोगे? आप रोब्लॉक्स खेलोगे, पबजी खेलोगे, मतलब तरह तरह के आजकल के जो फेमस गेम्स है उसका आपको लालच देंगे तो बच्चे कहेगा हाँ मैं खेलूंगा, मम्मी पापा तो खेलने नहीं देते हैं, भैया खेलने देता है तो मैं भैया के साथ ये गेम खेलता हूँ। जो पड़ोस का भैया आया है आपके पास, आपको गेम खिलाने के बहाने वो भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ करेगा जो उसको नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करता है तो क्या है? अपराध है। किस एक्ट में अपराध होगा? ये पोक्सो एक्ट में। कौन से एक्ट में अपराध होगा? पोक्सो एक्ट में। आप दिन ब दिन आप यहाँ पर भी बागेश्वर में भी सुन रहे होंगे, आज इस बच्ची के साथ ये घटना घटी, पोक्सो एक्ट के तहत ये अपराध हो गया कि लड़की किसी के साथ चली गई। आजकल हमारी यंग जनरेशन में बड़ी जल्दी इधर से उधर हमारा मन बहुत चंचल होता है, तो बहकता भी बहुत जल्दी है, तो हमें अपने मन पे नियंत्रित करना है। कोई भी बच्ची है 8th क्लास में पढ़ रही है, रोज स्कूल आती जाती है, पड़ोस का कोई बच्चा है उसके साथ आती जाती है, वो भी बच्चा है, लड़का है, उसके साथ आ जा रही है। आजकल हमारा जो व्हाट्सएप का जमाना है, नंबर शेयर हो गया, व्हाट्सएप पे चैट होती है, धीरे धीरे बात इतनी बढ़ जाती है कि उनको लगता है हाँ कि मुझे इससे प्यार हो गया है। अब मम्मी पापा अच्छे नहीं लगते हैं, मम्मी पापा की कोई बात अच्छी नहीं लगेगी, मम्मी पापा मना करेंगे तो गलत लगेगा, उस लड़के की बात अच्छी लगेगी तो हम उसकी बातों में इतना आ जाएंगे, उस लड़के की बात, वो लड़का कहेगा कि हम कहीं चलते हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम मम्मी पापा भी हमारी बात नहीं मान रहे हैं, हम लोग कहीं चले जाते हैं, हम लोग चलो देहरादून चलते हैं। देहरादून आपको ले जाएगा, आपके साथ ऐसा कृत्य कर देगा जिसको आप रेप समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। उसके बाद आपको छोड़ के देगा कि हाँ अब ये क्या हो गया, वो भाग जाएगा आपको छोड़कर, आपकी लाइफ क्या हो जाएगी। फिर आप इस स्टेज पे पहुंच जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अब क्या करें। आप डर के मारे घर पे भी बताना उचित नहीं समझोगे। उसके बाद आपके मम्मी पापा होंगे, ढूंढेंगे, गुमशुदगी की FIR दर्ज कराएंगे कि बेटी पता नहीं कहाँ चली गई है। FIR कराएंगे तो पता चलेगा कि ऐसा ऐसा मामला है, फिर उसके बाद पोक्सो के तहत कोई मुकदमा दर्ज होगा। तो ये एक ऐसे आपने अपने घर वालों से छिपा के एक इतने बड़े अपराध को जन्म दे दिया कि वो आपकी लाइफ थ्रेटनिंग समझ लीजिए हो गया आपकी लाइफ के साथ। अगर कोई, आप तो भी छोटे हो ना,
आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना कारित कर रहा है, रेप जैसी, जिसको हम मैं सिंपल भाषा में कह रही हूँ ताकि आप समझ पाओ, कोई ऐसी घटना कारित कर देता है तो आपको फिजिकली कितना हार्म है उस चीज का, आपकी बॉडी बेकार होगी, मेंटली कितना डिप्रेस होगी, सोशली कितना वीक हो जाओगे। आप सोचिए आपके पेरेंट्स को अगर पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी। तो ऐसे करते हुए हमें, अगर आपके साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कभी भी अपने जो मम्मी पापा है उसे कभी मत छिपाइए, क्योंकि इतनी बात आगे बढ़ जाती है कि वो फिर हम संभाल नहीं सकते और फिर वो एक जघन्य अपराध का रूप ले लेती है। उसका उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। पोक्सो के तहत ही, पोक्सो में हमें जो विक्टिम है जिसके साथ कोई घटना घटित हुई है, ये ऐसा एक्ट है जो विक्टिम को एड प्रोवाइड करता है। एड प्रोवाइड इन द सेंस कि सपोज कोई पोक्सो का केस फाइल हो गया है और जो विक्टिम है लड़की है, तो अभी केस प्रूव भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको तब भी इंटरिम कंपनसेशन मिल सकता है, अंतरिम प्रतिकर मिल सकता है, चाहे केस वो हारे या जीते, प्रूफ हो ना हो, लेकिन इंटरिम कंपनसेशन मिलेगा। जो उसको मेंटल आघात हुआ है, इन सारी चीजों को देखते हुए उसको कंपनसेशन का प्रावधान किया गया है। तो अगर कभी भी किसी के साथ ऐसी घटना ना हो, अगर किसी के साथ ऐसी घटना होती है तो आप लोग भी किसी को बता सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं कि पोक्सो एक्ट में जो विक्टिम होती है उनके लिए विक्टिम कंपनसेशन, इंटरिम कंपनसेशन का प्रावधान किया गया है। आपको बता दूं एक बहुत अच्छी चीज, जो पोक्सो एक्ट आया, पोक्सो एक्ट भी 14 नवंबर को ही प्रभावी हुआ है। एनफोर्स में 14 नवंबर 2012 को ही आया है। आज चिल्ड्रंस डे है। चिल्ड्रंस डे से याद आया कि पोक्सो एक्ट इसी दिन लागू हुआ। बच्चों के लिए जो एक कानून बनाया गया है वो 14 नवंबर को ही लागू हुआ है। इसी के साथ हम बात करते हैं, जो हमारा चिल्ड्रंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, इसका यही है कि बाल श्रम को रोका जाए, बच्चों के अगेंस्ट जितने भी अपराध हो रहे हैं उनको रोका जाए। हमारे संविधान में बच्चों के लिए इतने सारे प्रावधान बनाए गए हैं कि 6 से 14 साल के बच्चे के लिए क्या होगी, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। उसके बावजूद भी आप देखिएगा कि कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? चाहे कोई उनकी घर की मजबूरी हो, लेकिन हमारी सरकार ने व्यवस्था की है कि 6 साल से 14 साल तक का जो बच्चा है उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाए। उसी प्रकार से जो 6 से 18 वर्ष तक का बच्चा है, डिसेबल है, अगर डिसेबल है तो उसके लिए भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। इन सब चीजों का लाभ प्रत्येक बच्चे को मिले, हमारे संविधान में ये संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। सूचना का जो अधिकार है, जो राइट टू एजुकेशन है, इसको एक मौलिक अधिकार के रूप में हमारे संशोधन के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। क्यों मौलिक अधिकार बनाए जाने की आवश्यकता पड़ी? अगर ना करते तो, जैसे हमारे लिए पानी हवा जरूरी है, बेसिक नीड्स है, वैसे ही हमारे संविधान में राइट टू एजुकेशन को एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया कि ताकि प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो, कोई भी निरक्षर ना रहे, वो अपने जीवन में डिसाइड कर पाए, उसको इतनी स्वतंत्रता हो, पढ़ लिख के इतने लायक बन जाए कि उसको जीवन में क्या करना है, वो इन सब चीजों के बारे में उसको जानकारी हो, उसको इतना पता हो कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। आजकल आप देख रहे होंगे नशे का दुष्प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हम बागेश्वर जिले की ही बात करें, आए दिन केसेस न्यूज़पेपर में पढ़ लीजिए, आप कोर्ट में देख लीजिए, दिन प्रतिदिन का कोई ऐसा दिन नहीं जाता होगा कि कोर्ट में कोई रिमांड जो नशे का काम करते हो उनकी ना होती हो। नशे का प्रभाव इतना बुरा है कि वो मानसिक, शारीरिक, सामाजिक रूप से आपको कमजोर कर देता है। वो स्वयं तो जो व्यक्ति, जो बच्चा जो नशा कर रहा है उसको तो कमजोर करता ही करता है, उसके माता पिता को कमजोर कर देता है, उनको अंदर ही अंदर तोड़ देता है कि वो समाज का जो यातनाएं हैं वो झेले। लोग कहते हैं इसका बच्चा तो नशा करता है। सोचिए वो माँ पे क्या बीतती होगी जब वो घर से निकल रही है और कोई कहे इनका बच्चा तो नशा करता है, नशा करके वहां पड़ा हुआ था और यहाँ गिरा हुआ था और ऐसे कर रहा था वो। लेकिन जो बच्चा नशा कर रहा है उसकी कंडीशन तो खराब हो गई। मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक बच्चा था, उसके स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी, 10th वाले बच्चे को फेयरवेल देनी थी, वो 9th क्लास में पढ़ता था। पता था कि फेयरवेल पार्टी हो रही है, तो उसने कहा कि हो सकता है कि बच्चे बियर वगैरह लेके आए और बियर पियेंगे। उसने कहा मैं नहीं पीऊंगा, मैं चला जाता हूँ पार्टी में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लूंगा। उसको, उस बच्चे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं गलत संगत में पढ़ ही नहीं सकता हूँ। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। कॉन्फिडेंट होइए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। जब वो बच्चा पार्टी में गया, उस बच्चे को किसी ने बियर ऑफर की कि ये तो सिंपल फ्रूट बियर है, पी सकता है तो। उसने कहा नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, घर पे डांट पड़ेगी। नहीं, उसने कहा ये तो फ्रूट से बनी हुई है, इसमें कुछ थोड़ी ये हार्मफुल भी नहीं होती है। उस बच्चे ने कहा चलो ठीक है मैं पी लेता हूँ। उस बच्चे ने पी ली फ्रूट बियर। ऐसे कुछ छोटी मोटी गेट टुगेदर होती थी, बच्चे कभी जाते थे तो वो फ्रूट बियर पीने लगा। 11th 12th तक वो
फ्रूट बियर पे चलता रहा, उसको कॉलेज में पहुंचा बच्चा। कॉलेज में उस बच्चे की अब तो दूसरी जो फ्रेंड सर्कल है वो चेंज हो गया, बड़े बच्चे आ गए तो उनका स्टैंडर्ड बढ़ गया, वहां तो बड़ा स्टेटस भी होता है ना कॉलेज में, कोई ये कोई वो। तो स्टेटस के चक्कर में उसने कहा तो फ्रूट बियर पीता है, बच्चा है क्या फ्रूट बियर पिएगा, कुछ और ट्राई कर। तो उसने कहा और क्या ट्राई कर, उसने कहा चल मैं ट्राई कराता हूँ। तो उसको उसने अल्कोहल ट्राई किया कि ये ट्राई कर, इससे बहुत अच्छा लगेगा, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, मजा आता है पी के। तो उस बच्चे ने अल्कोहल पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसको इतना एडिक्शन हो गया कि उसके बिना उसको नींद ही नहीं आती थी। उसने कहा जो बच्चा जो पहले नहीं लेना चाह रहा था वो इतना एडिक्ट हो गया कि उसको लगा अब कुछ और अच्छा चाहिए जिससे कुछ और आनंद आए, माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए। धीरे धीरे करके उसने ड्रग्स की ओर कदम बढ़ाया। ड्रग्स पेडलर आपको हर जगह अवेलेबल मिलेंगे। जैसे बच्चे को पता चला कि अब उसने थोड़ी सी ड्रग्स लेनी शुरू की। ड्रग्स के भी बहुत सारे वेज होते हैं, पहले तो लोग पता नहीं किस किस चीज से ड्रग्स ले लेते थे, अब तो पाउडर फॉर्म में मिल रहा है, चरस हो गया, गांजा हो गया, ना जाने कितनी चीजें आ गई हैं। तो बच्चे ने फिर वो ड्रग्स लेनी शुरू करी। ड्रग्स लेके वो माइंड का तो माइंड स्टेबल ही नहीं है ना, ड्रग्स ले रहे हैं तो पता ही नहीं है हमारा माइंड है कहाँ, वो तो दुनिया ही अलग हो जाती है। तो वो तो ड्रग्स लेके फिर उसको ऐसा हुआ कि वो झूमने लगा और माइंड उसका बिल्कुल रिलैक्स, वो सोया रहता था, उसको यही नहीं पता होता था कि क्या चल रहा है क्या नहीं। जब उठता था फिर ड्रग्स लेता था, फिर सो जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके यही सब चलता रहा। उसके बच्चे की बड़ा हुआ, शादी हो गई, शादी होने के बाद एक बच्ची हो गई। जब शादी हुई उसकी वाइफ को लगा, और इवन लव मैरिज हुई, उसके बाद उसकी वाइफ उसको समझाती रही सुधर जाओ, मत करो, ड्रिंक अच्छी नहीं है, आपके हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, हमारी बच्ची छोटी है, इस पे गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी नहीं माना। उसकी वाइफ ने उसका डाइवोर्स का केस कर दिया, डाइवोर्स हो गया उनका, उसका घर वहीं से बर्बाद होना शुरू हो गया। डाइवोर्स हो गया वो, अब वो कह रहा है अब मुझे जीने का क्या फायदा, मेरी फैमिली तो चली गई, मम्मी पापा है, उसने कहा बच्ची थी वो भी चली गई, मेरी वाइफ थी वो भी चली गई, अब जीने का कोई मतलब ही नहीं है, अब मैं मरूंगा तो ड्रग्स लेके ही मरूंगा। अब उसके मन में ये ख्याल आया मुझे मरना है अब चाहे जैसे भी मरूं, लेकिन उसका था जब मरूं मैं ड्रग्स लेके ही मरूं। उसने ड्रग्स की डोज और बढ़ानी शुरू कर दी। वो ड्रग्स इतनी ड्रग्स लेने लगा कि उसकी वेन्स मिलना ही बंद हो गई। उसने इंजेक्टेबल फॉर्म में ड्रग्स लेनी शुरू करी। अब उसकी वेन्स ही नहीं मिल रही थी। एक दिन वो ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा हुआ, यहाँ की वेन उसको तड़पती हुई नजर महसूस हुई कि हाँ वेन मेरी तड़प रही है। उसने क्या किया, यहाँ वो ड्रग्स का इंजेक्शन लगा लिया जिससे ड्रग्स जाता। वो ड्रग्स जैसे ही उसने इंजेक्शन लगाया वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद जब उसकी 5-6 घंटे के बाद नींद खुली है तो उसका चेहरा पूरा स्वेल हो चुका था, आंखों से ऐसा लग रहा था ब्लड निकल जाएगा। उसकी स्थिति थी कि अभी बिल्कुल मर जाएगा। उसके घर वाले इतना परेशान हो गए। उसका दोस्त आया, 2-3 दोस्त जितने रिश्तेदार थे सब आया कि अब ये बचेगा नहीं। उसका दोस्त आया, उसने कहा कि लोग ड्रग्स करके मरते हैं, छोड़ के कोई नहीं मरेगा, तू छोड़ के तो देख। उसने कहा ऐसा है कि छोड़ के भी नहीं मरते हैं लोग, तो उसने कहा मैं छोड़ के मरूंगा। उसने ये दृढ़ संकल्प लिया कि इसने मुझे चैलेंज दिया है कि छोड़ के कोई नहीं मरता है, मैं छोड़ के मरूंगा। धीरे 14-15 दिन हो गए उसने ड्रग्स नहीं ली। उसको लगा, वो दिन भर रूम में पड़ा रहता था, जब उसने ड्रग्स 14-15 दिन नहीं ली, वो रूम के बाहर निकला तो उसको दुनिया लगी कितनी खूबसूरत दुनिया है, मतलब उजाला है, सब लोग दिख रहे हैं, चहल पहल दिख रही है, तो उसको बहुत अच्छा लगा। वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा नहीं ड्रग्स मैं नहीं लूंगा। उसने धीरे धीरे करके ड्रग्स छोड़ने का प्रण किया। उसको अच्छा लगा, उसकी बॉडी में अच्छा फील होने लगा जब थोड़े दिन का गैप हो गया। उसके बाद जब उस लोगों को पता चला कि जो व्यक्ति लगातार 9th क्लास से ड्रग्स ले रहा था और इस एज तक ड्रग्स ले रहा था, उसने ड्रग्स छोड़ दी है, तो उसको जो पुलिस वाले उसको ड्रग्स लेने के चक्कर में गिरफ्तार करते थे, ड्रग्स उनको लगता था ड्रग्स यूज कर रहा है, उसको दिन ब दिन मारते पीटते थे, वही पुलिस वाले उस बच्चे को जो बड़ा जिसने ड्रग्स छोड़ी उसको सम्मानित किया गया, उसको स्टेज पे बिठाया गया। उसके बड़े बड़े पत्रकारों ने उसके फोटो खींचे और उसके बाद एक उसने नशा मुक्ति केंद्र टाइप का एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया। न जाने 100 से ज्यादा अधिक बच्चों उसके इंस्टीट्यूशन में आए और उन सबने नशा छोड़ दिया। तो नशे की लत ऐसी थी कि उसका घर भर बीवी बच्चे चले गए, घर में मम्मी पापा बूढ़े माँ बाप थे। जब बूढ़े माँ बाप हो जाते हैं कौन उनकी सुन रहा है, कोई भी नहीं सुनता। तो उसने एक ये इससे हमें लेसन मिलता है कि ड्रग्स बहुत बुरी चीज होती है। जब एक बार इसकी लत लग गई तो आप बिल्कुल समझ लीजिए बर्बाद हैं। आप स्वयं को बर्बाद कर रहे हैं, आप अपने परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। तो ड्रग्स की भी कभी भी लत ये मत सोचिएगा कि हाँ मैं तो नहीं लूंगा, मैं पार्टी में चला जाता हूं तो क्या हो गया वहां सब लेंगे, मैं तो नहीं पीऊंगा। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी मत लीजिएगा। आपको कभी भी कोई ऑफर भी करे तो उसको इस रिजिडिटी के साथ आपको बोलना है कि हाँ ये इसको गुस्सा आ रहा है, ये मार भी देगा अगर मैंने इसको दोबारा ऑफर किया। तो आप लोगों के अंदर इतना दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हाँ मुझे नहीं लेनी है तो नहीं लूंगा। सामने वाला जो ऑफर कर रहा है वो भी आपसे डर जाए कि अगर मैंने इसे ऑफर किया तो अब तो ये मुझे मार देगा, ये मुझे मारेगा।
तो आपके अंदर इतनी दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हाँ, ना कहना है तो ना कहना है, ये नहीं कि मन डगमगा जाए और आप उसको लेना शुरू करते, एक बार लेंगे फिर धीरे धीरे उसकी एडिक्शन बढ़ती जाती है। तो इन सब चीजों को हमें रोकना है। किशोर न्याय अधिनियम है एक, जैसे मैंने पोक्सो अधिनियम बताया, बच्चियों के साथ या कोई भी बच्चा है, बच्ची किसी के साथ जो 18 साल से कम उम्र का है, उसके साथ कोई घटना घटित होती है तो हम पोक्सो अधिनियम लगाते हैं किसी के अगेंस्ट। अब किसी बच्चे ने कोई अपराध कर दिया है जो बिलो 18 ईयर है, बिलो 18 ईयर कोई बच्चा है, कोई ऑफेंस कर देता है, तो उसके लिए किशोर न्याय अधिनियम है 2015 का। उस अधिनियम के तहत उस बच्चे की कार्यवाही कोर्ट में चलती है। जिस बच्चे की कार्यवाही किसी कोर्ट में चलती है, उसको कोर्ट नहीं कहते हैं, उसको बोर्ड कहते हैं, किशोर न्याय बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहते हैं। जहां पर उस बच्चे से संबंधित जो भी मुकदमा होता है, ट्रायल होता है, वो किशोर न्याय बोर्ड में चलता है। कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार का अपराध कर देता है तो उसको, जो पुलिस होती है, पुलिस एक वेशभूषा होती है ना, उनकी ड्रेस कोड होता है, वो ड्रेस कोड पहन के बच्चे के साथ ना बच्चे को पकड़ सकती है, ना बच्चे से कोई पूछताछ करती है। उनको अगर उनके पकड़ने नहीं आएगी, उनसे कुछ पूछताछ भी करनी है तो बिल्कुल फॉर्मल यूनिफॉर्म होगी उनकी, जैसे कैजुअल्स में हम लोग हैं, कि बच्चे को किसी प्रकार का उनके मानसिक मस्तिष्क पर कोई प्रभाव, गलत प्रभाव ना पड़े कि पुलिस क्यों आई है। मतलब इस एक्ट को इतना चाइल्ड फ्रेंडली एक्ट बनाया गया कि बच्चे के माइंड पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। तो उसकी जो कार्रवाई शुरू होती है, जांच की कार्रवाई शुरू पुलिस से होती है। पुलिस भी आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेवियर करेगी, उनकी जो यूनिफॉर्म में वो नहीं रहेंगे। उसके जो कार्रवाई होगी वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में होगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में 18 साल से कम उम्र के बच्चे ने कोई अपराध किया है तो उनकी कार्रवाई होती है। 16 से 18 साल का कोई बच्चा है, अगर उसने कोई हीनियस ऑफेंस किया है, हीनियस ऑफेंस का मतलब हुआ 7 साल से अधिक की जिसमें पनिशमेंट है, अगर वो अपराध किया है, लाइक मर्डर किया है बच्चे ने, तो उसका जो ट्रायल है उसके संबंध में पहले बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड क्या करेगा, प्रीलिमिनरी असेसमेंट होता है, प्रारंभिक जांच करेगा। क्या इस बच्चे की घटना की दिनांक को, जिस दिन ऑफेंस घटित हुआ है, सोचने समझने की इतनी शक्ति थी कि वो इसके परिणामों के बारे में समझ पाता कि मर्डर कितनी बड़ी चीज होती है, मर्डर कर दिया, क्या वो ऐसा समझ सकता था बच्चा? ऐसी जांच करेगा किशोर न्याय बोर्ड। अगर किशोर न्याय बोर्ड को लगता है कि बच्चे को इतनी समझ थी कि वो समझ पाता कि इसको अगर मैं ये अपराध कर रहा हूं तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो उस ट्रायल को हम रेफर कर देंगे चिल्ड्रंस कोर्ट, बाल न्यायालय को हम वो मामला भेज देंगे, बड़े कोर्ट को भेज देंगे, जिसको हम कहते हैं बाल न्यायालय। बाल न्यायालय हर जिले में होता है। जिला जज की जो कोर्ट होती है, पहाड़ों पे काम कम है तो जो जिला जज की कोर्ट है उसी को बाल न्यायालय कह दिया जाता है। बाकी प्लेन्स की डिस्ट्रिक्ट में, जैसे देहरादून है, उधम सिंह नगर है, रुद्रपुर है, वहां पर सेपरेट कोर्ट होती है, उनको बाल न्यायालय का दर्जा दिया जाता है। वे ऐसे मैटर्स को डील करती हैं, जैसे प्रीलिमिनरी असेसमेंट होने के बाद वह मैटर उनको भेज दिया जाता है। जो इसमें अधिकतम सजा है, अगर कोई बच्चा अपराध करता है, वो 3 साल है। 3 साल के लिए भी हम बच्चे को जेल में नहीं भेजते हैं, वो जेल नहीं होती है, वो विशेष गृह होता है, स्पेशल होम होता है। देखिए सर, हमारा जो जिसने भी ये एक्ट बनाया, उनकी मंशा देखिए बच्चों के लिए कितनी अच्छी है कि उनको विशेष गृह में भेज रहे हैं जहां पर उस बच्चे का सुधार हो सके। वो गृह ऐसा है जहां पर बच्चे के हेल्थ से रिलेटेड, उसकी पढ़ाई से रिलेटेड, एक्टिविटीज से रिलेटेड सारी व्यवस्था की जाती है। बच्चा सुबह उठेगा, योगा करेगा, योगा करने के बाद नाश्ता क्या करेगा, वो सारी चीजें डिसाइड होती हैं। फिर उसके बाद ट्यूशन टीचर्स लगाए जाते हैं वहां पर उसको पढ़ाने के लिए। तो ऐसी जगह सजा की जो उन बच्चों के लिए है वो स्पेशल होम है, जो कि हर जगह की अलग अलग है। और दौरान जांच, जब तक कि मुकदमा पेंडिंग चल रहा है बच्चे का, तब भी हम उसको जेल में नहीं रखते हैं। उनकी बच्चों के लिए एक संवेक्षण गृह होता है, ऑब्जर्वेशन होम, जहां बच्चों को रखा जाता है। दौरान विचारण का मतलब ये होता है कि अभी केस चल रहा है कि बच्चे ने किया है नहीं किया है। गवाही आएगी, गवाही आने के बाद बहस होगी, बहस होने के बाद सुना जाएगा, कोर्ट सुनेगी, डिसाइड करेगी। जो सबूत फाइल पे आए हैं, चाहे वो मौखिक साक्ष्य हो या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, वो सारी कोर्ट देखती है। कोर्ट देखने के बाद लगता है कि हाँ, बच्चे ने ये घटना की है तो उसको विशेष गृह भेज देगी, और अगर नहीं किए तो बच्चे को छोड़ दिया जाएगा। तो ये बच्चों के कुछ ऐसे कानून हैं जो बच्चों के अगेंस्ट हैं। जैसे बच्चे ने किसी ने ऑफेंस किया है तो कौन से एक्ट से गवर्न होगा, किशोर न्याय बोर्ड से गवर्न होगा। उसी प्रकार से अगर किसी लड़की के साथ, बच्ची, लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है पोक्सो एक्ट के तहत, जनरली हम गर्ल्स के ही मैटर्स देखते हैं, तो उसके लिए पोक्सो कोर्ट होती है, पोक्सो एक्ट के तहत उसका गठन होता है और उसी में उनकी कार्रवाई
चलाई जाती है। आजकल आप देख रहे होंगे साइबर फ्रॉड, आपने बहुत सुना होगा साइबर फ्रॉड के। कोई कॉल आती है आपके पास कि आपके पार्सल से मुझे ड्रग्स मिला है, 2 लाख रुपए मुझे तुरंत मेरे इस नंबर पे भेजो, नहीं तो बहुत लंबा अंदर जाओगे, सड़ते रहोगे जेल में, ऐसे करके आपको कॉल आएगा और आप डर जाओगे कि न जाने ये कौन है, मेरे पार्सल से ड्रग मिल कैसे गया। आपको तो पहले आप डर जाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा और आप इतना डर जाओगे आप तुरंत कोशिश करोगे कि जो पैसा मांग रहा है 2 लाख रुपए मैं इसके तुरंत अकाउंट में भेज दूं। कोई मान लीजिए जैसे मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रही हूँ कि कोई अवेयर व्यक्ति अगर उसके घर में है, व्यक्ति के उसके बच्चे हैं, उनको जानकारी है कि यह फेक कॉल है, ये साइबर फ्रॉड हो सकता है कि हाँ ये आपको डिजिटली अरेस्ट करके आपसे पैसा लूटने की साजिश हो सकती है, तो वो कहेगा पापा घबराइए मत। ये साइबर क्राइम का एक तरीका है, साइबर फ्रॉड का एक तरीका है कि आपको इस तरीके से डराया जा रहा है कि आप डर के पैसा भेज दो और फिर वो आपसे धीरे धीरे करके पूरा अकाउंट आपका खाली हो जाएगा और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो ऐसे साइबर फ्रॉड के नए नए तरीके चल रहे हैं आजकल, आपसे ऐसा कहेंगे कि आपके बच्चे ने रेप कर दिया है और वो हमारे पास बैठा हुआ है, उसकी आवाज मतलब आपके बच्चे की आवाज भी वो सामने से वैसे ही निकाल देंगे। एआई का आप जमाना देख रहे हैं तो आपको लगेगा मेरे बच्चा उनके कब्जे में है, मेरे बच्चे ने रेप जैसा इतना बड़ा गंभीर जघन्य अपराध कर दिया है, मैं क्या करूं। वो कहेंगे तुम्हारे बच्चे को हम बचा सकते हैं अगर हम तुम हमें 50 लाख रुपए दे दो। आप कहोगे भगवान मेरा बच्चा कैसे भी करके बच जाए ना, यही सोचेंगे हम लोग। उस टाइम पे हमें ये समझ में नहीं आएगा कि मेरा बच्चा तो यहीं पास में गया हुआ है या स्कूल गया है, कहीं गया, आपके माइंड में ख्याल ही नहीं आएगा। आपको लगेगा सच में मेरे बेटे ने कुछ रेप जैसा कोई अपराध कर दिया है और आप 50 लाख रुपए उस व्यक्ति को ट्रांसफर कर दोगे। वो दोबारा कॉल करेगा और पैसे की डिमांड करेगा, धीरे धीरे करके आपका पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा, सारी डिटेल उनके पास चली जाएगी। तो जो ऐसे अपराध है आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आजकल आप देखते होंगे ऑनलाइन आता है ना कि नौकरी पाइए, ऐसे भी बड़े लिंक्स आते रहते हैं। आप फेसबुक खोलेंगे तो नौकरी पाइए, इस लिंक पे क्लिक करिएगा तो आपको एक फॉर्म आएगा, वो भरिएगा और फॉर्म भरेंगे तो आपको ऐसे करके ऑफर आ जाएगा इंटरव्यू का और आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें वो सारी फेक आईडीज हैं, वो सब फेक लिंक्स दे रखे हैं ताकि आप उनके झांसे में फंस जाएं और आपके साथ धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी कारित हो पाए। तो इन सारी चीजों पे हमें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आजकल जो जो चीजें चल रही हैं, साइबर फ्रॉड हो गया, नशा हो गया, बच्चों से रिलेटेड क्राइम्स हो गए, पोक्सो के बारे में जैसे बताया, इन सब के प्रति आप लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। आप छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको किसी भी अननोन व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना है। मैं यहाँ स्कूल प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आसपास में आप थोड़ा सा भी वॉच करिएगा। ड्रग पैडलर्स हर जगह है, वो ऐसी जगह है कि कहाँ बच्चों को हम इजीली अप्रोच कर सकते हैं। एक भी बच्चे को अगर अप्रोच कर लिया तो सोच लीजिए मतलब उस बच्चे का पूरा करियर बर्बाद हो गया। अगर हम एक बच्चे का भी करियर बचा सकते हैं तो हमारी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें प्रयास करना है, हम सबको, प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना है कि जो ड्रग्स पेडलर आ कहां से रहे, आखिर हम हमारे बीच में से ही तो कोई व्यक्ति होगा, तो वो ऐसा क्यों है कि हमारे किसी भी बच्चे को इतनी आसानी से दबोच ले रहा है ड्रग्स को बेचने के लिए और हमारा बच्चा उनके झांसे में आ जा रहा है। तो इन सब चीजों पे हमें वॉच रखने की जरूरत है। मैं आपको बताऊंगी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसे मैं पेशे से जज हूं लेकिन आजकल मुझे कानून का प्रचार प्रसार, लोगों को जागरूक करने का एक कार्यभार सौंपा गया है। उसको जो उनका डेजिग्नेशन होता है वो होता है सचिव। जो मैं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक ऐसी संस्था है जो हमारे राष्ट्र लेवल पे वर्क कर रही है। राष्ट्रीय लेवल पे जो करती है उसको हम नालसा कहते हैं, नेशनल एड लीगल सर्विस अथॉरिटी। उसी प्रकार से स्टेट लेवल पे काम करती है हमारी राज्य उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है। जिला स्तर पे जो काम करती है उसको हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कहते हैं। उसी प्रकार से तहसील लेवल पे भी ये संस्था काम करती है, उसको हम कहते हैं तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण। जो ये सारी इकाइयां हैं, इन सबका एक ही काम है, जो हमारे समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनको हम कानूनी सहायता प्रदान कर सके। कानूनी सहायता प्रदान करने का मतलब है जो व्यक्ति पात्र है, मतलब पात्र कौन हो सकता है, पात्र कोई भी महिला जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता पा सकती हैं, ले सकती हैं। उन्हें यदि किसी प्रकार का कोई केस करना हो, उनके अगेंस्ट कोई केस हो गया हो, तो वह उनको निःशुल्क अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिल सकते हैं। वो यदि एप्लीकेशन कोई प्रूफ करती हैं। हमारे पूरे जिले में 95 पैरालीगल वॉलंटियर्स काम करते हैं, जो आप लोगों के बीच के ही हैं। वो होते हैं स्वयं सेवी, मतलब उनका भी काम जागरूकता फैलाना है। अगर उनके पास कोई भी अप्रोच करता है, इस प्रकार की कोई समस्या आती है कि मेरे पास वकील नहीं है, मुझे वकील चाहिए, तो उनको वो वकील दिलाने में सहायता करते हैं। जैसे मैंने एक
श्रेणी बताई पात्रता की महिला, उसी प्रकार से बच्चे हो गए, कोई भी विकलांग व्यक्ति हो गया, एसटी एससी कम्युनिटी से कोई भी व्यक्ति बिलोंग करता है वह हो गया, कोई भी व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, यदि कोई भी व्यक्ति जिसकी आय 3 लाख रुपए से कम है उसको भी निःशुल्क कानूनी सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से मिल सकती है। एक्स सर्विसमैन जो भी हो गए उनको निःशुल्क विधिक सेवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त हो सकती है। ये पात्र व्यक्तियों की सूची है जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। अभी 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा माध्यम होता है किसी भी चीज को सुलझाने का जिसमें दोनों पार्टी खुश रहती है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का कोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है, लड़ाई झगड़े का छोटा मोटा मुकदमा है, आप केस लड़ते रहोगे, न जाने 5, 6 साल 10 साल कितने लग जाते हैं छोटे से मुकदमे को लड़ने में। तो जो लोक अदालत होती है, लोक कोर्ट भी आपको समझाती है, जिस कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है कि हर आगामी 3 महीने में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। तो कोर्ट समझाती है कि इस महीने लोक अदालत आने वाली है, राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालत आने वाली है, आप लोग क्यों बैठ के बात नहीं कर लेते हो, क्यों समझौता नहीं कर लेते हो। पार्टियों को समझाती है, एक बार प्रयास करके तो देखिए। पार्टीज को लगता है ठीक है, एक बार बात करने में कोई बुराई नहीं है, हम लोग बात करके देखते हैं। पार्टीज बात करती हैं और उनको लगता है कि ये तो बहुत छोटा मैटर था, हमारा सुलह समझौते के आधार पर सुलझ सकता है, जिसमें अभी 2, 3, 4 साल पता नहीं कितने साल लगने की और संभावना है। अगर वो समझौता आप करेंगे तो समझौते के माध्यम से वो केस 2 दिन में 3 दिन में डिसाइड हो जाएगा। तो ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत में दोनों पार्टीज को आपस में बैठ के अपना केस सुलझाने का मौका मिलता है, इसको हम कहते हैं लोक अदालत। लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां दोनों पार्टी सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठ के अपने मामले को निपटाती हैं। उसकी कोई अपील रिवीजन नहीं होती है। क्यों अपील रिवीजन नहीं होती? क्योंकि वो दोनों पार्टीज का फैसला है, किसी एक पार्टीज का नहीं, एक कोर्ट का नहीं है कि एक के फेवर में हो गया, एक के अगेंस्ट हो गया। उस लोक अदालत के माध्यम से दोनों पार्टी जीती है ना, दोनों ने अपनी मर्जी से केस डिसाइड किया है कि हाँ ऐसा ठीक रहेगा, जो गलती हो गई सो हो गई, भविष्य में ऐसा ना हो, तो दोनों की मर्जी से वो केस डिसाइड हुआ है। तो ऐसे मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में डिसाइड होते हैं। जैसे किसी का चेक का मुकदमा हो गया, जो भी हम चेक ले लेते हैं ना, कि किसी ने आपको पैसे उधार लिए आपने और आपने उसे चेक दे दिया। अब चेक तो आपने दे दिया लेकिन आपके खाते में पैसे ही नहीं, उसका चेक बाउंस हो जाता है, वो चेक का मुकदमा कर देता है कोर्ट में। तो ऐसे मामले भी लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जा सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे किसी का जमीन का मुकदमा है, मान लीजिए ये जमीन है, ये आपकी है, ये मेरी जमीन है, बीच में छोटी सी मेड़ आ रही है। अब वो कहता है मेरी है, मैं कहती हूँ मेरी है, इसी मेड़ की लड़ाई है। अब ये दोनों पार्टीज को बैठने से सुलझ सकती है कि हाँ भाई किसकी है, क्या है, उसको सुलझा लो बैठ के। तो सिविल मामले भी जिसमें छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते हैं वो भी सुलझ जाते हैं। और सिविल में बहुत जो कोर्ट फीस लगती है वो बहुत ज्यादा लगती है। तो अगर लोक अदालत के माध्यम से कोई भी केस अगर डिसाइड होता है तो वो कोर्ट फीस वापस हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई केस किया है, रिकवरी का किया, कि आप इसको आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए हैं, 1 लाख रुपए दिए और व्यक्ति वापस नहीं कर रहा है, तो 1 लाख रुपए पे लगभग 8-10 हजार रुपए की कोर्ट फीस लगेगी सिविल मुकदमे में। वो 8-10 हजार रुपए की कोर्ट फीस आपको अगर लोक अदालत के माध्यम से आप डिसाइड करते हैं तो वो कोर्ट फीस आपको वापस मिल जाएगी। ठीक है, तो ये लोक अदालत का उद्देश्य है। लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर आप अपने मामले को निस्तारित कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बच्चों को पुनः बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे बच्चे जो कहते हैं ना मिट्टी है छोटी सी, उनको जैसे तराशोगे वैसे तराश रहेंगे, जो छोटे हैं तराशते तराशते वो बड़ी इमारत बन जाएंगे। तो आप सबसे बच्चों से यही रिक्वेस्ट है, आप इतना पढ़ो लिखो, आप छोटे हो, अभी तो ऐसे कहते हैं ना कली होती है, धीरे धीरे खिलेगी बड़ी होगी, तो ऐसी कली हो कि आप खूब मेहनत करो, खूब पढ़ो, अपने जीवन में खूब तरक्की करो और हमेशा कोशिश करना कभी भी ना किसी से झूठ बोले और अच्छाई के रास्ते पे चलने की कोशिश करना। सोचना आपके मम्मी पापा की आपसे कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको जैसे तैसे चाहे अच्छे स्कूल में पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा बेहतर स्कूल में पढ़े, पढ़ लिख के इस लायक बने कि हाँ गर्व से उनका सर ऊंचा हो। तो इसी के साथ पुनः आपको बाल दिवस की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Inside in the subject of child crime and protection. So now it's the big moment we all are waiting for. I have with me the results of the child right and protection competition you guys had been participated in, and for that I would like to invite our chief guest to distribute the prize to our winners. So as first
करने को है बादलों पे रख के कदम आसमां को छू ले हम खुद से है ये मुकाबला दिल कहता है कुछ कर Show a few words of gratitude to our chief guest. कुछ कर Happy Children's Day to Children's Day to all of you. Yes. So on this happy occasion, we are very good, honored that with us we have our district's Bageshwar civil judge Anita Kumari ma'am with us, and it is very great privilege to us, and she given very valuable time to us and our school students, and also given very useful information about the Child Right and Protection Act, POCSO Act and Juvenile Board, and this is very important now, this right time, and because you all are children here, and on this occasion these acts are for you only, and but we don't have the knowledge about these acts and rights, so the students, I think all, I am hoping that all you have now today got the information about these acts and these rights of children, and whoever having these problems, those who will suffer these problems, and so according to ma'am, the things are made for the improvement and protection for the children, and you apply this and also inform to the others, your neighbors, your parents and others who are the victims of these problems. Is right? Have you all understood? You got the knowledge? So very good. Thank you, ma'am, just coming here and so giving the very information, very useful information to our students. On behalf of whole Uttarayan Academy family, we once again thankful to you and very honored with this you just given your time to hear your staff and you both, and hoping that next time also whenever we will have the such kind of the help, so we will consult to you. And okay, today this much only. Thank you. Have a nice day.